students, myself Rubina Chaudhary. In our previous lecture, we have started life process in living organism part 2. Student, there we have discussed what is reproduction, types of reproduction, and then we have seen a detailed classification of reproduction. In that particular lecture, we have seen what is binary fission, what is multiple fission, and what is budding. Binary fission, multiple fission, and budding are a type of asexual reproduction which is performed by unicellular organism. Now student, we are done with a part of a unicellular organism. So now we are going to see a type of a reproduction which is performed by simple multicellular organism. So our topic is going to be asexual reproduction in multicellular organism. When a word comes multicellular organism, that is very clear that they are made up of a multiple cells. They have multiple cells but their body is still simple. So any organism or any multicellular organism who perform asexual reproduction, they have a simple body plan. Their body is very simple. They are made up of cells, they have tissue, and that is all. In multicellular organism, there are various ways through which asexual reproduction could be performed. So firstly, we are going to talk about fragmentation. Okay students, so when we are talking about fragmentation, what does a fragmentation word means? So you can take it like a small segment, small segments. Fragmentation means a small segment. So what happened here? There is a simple organism such as Spirogyra who have their chloroplast inside them, and they have a very simple body plans. Now what happens students, this organism such as Spirogyra, they grow up to certain limit, and after reaching a certain limit, what happens, they start dividing their body into equal halves, or they start dividing their body. Now student, when the body is cutted, now there are three sections which are obtained. This is segment 1, this is segment 2, and this is segment 3. From each segment, from this segment, one another Spirogyra will grow. From this segment, one another Spirogyra will grow, and from this segment another Spirogyra will grow. So here we will get one Spirogyra, here we are going to get another Spirogyra, and later on we are going to get another Spirogyra. So what we can see, one parent cell, this is my parent, okay, who has divided its body into small segment, and after dividing we are getting multiple daughters. We are getting multiple daughters. And this type of reproduction, this type of asexual reproduction is known as a fragmentation. So student, what happened in fragmentation? In fragmentation, parent cell divides itself into many parts, and each part of parent cell now grow as different Spirogyra. This is what all about fragmentation is. एक parent cell है,
उसकी फेवरेबल कंडीशंस में, मतलब इनफ अमाउंट ऑफ फूड वाटर ग्रोथ हो चुकी है। अब ग्रोथ होने के बाद वो एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच गया है कि अब इससे ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, तो वो क्या करता है, अपने बॉडी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जब उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है, जैसे कि एक पेरेंट सेल से अभी मुझे यहाँ पे 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, क्या होगा, अब ये जो है ये दोबारा से खुद को इनफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, फेवरेबल कंडीशंस के बीच में इनकी भी ग्रोथ होगी। फिर आगे जाके स्टूडेंट्स ये भी क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड कर लेंगे बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में, और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से हमें एक स्पाइरोगायरा से 3, फिर 3 से 9 और ऐसे ही बहुत सारे स्पाइरोगायरा मिल रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी कंडीशन है स्टूडेंट विच इज़ परफॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन। अंडर फेवरेबल कंडीशन पेरेंट सेल grows rapidly and after reaching certain limit it break its body into many part, और इसके बाद वो अपने बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब ब्रेक डाउन होने की वजह से जितने भी पार्ट्स हमें मिले हैं उन सभी पार्ट्स में से स्टूडेंट हमें एक नया स्पाइरोगायरा मिलेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन। अब अगर तुम इसको कंपेयर करोगे बाइनरी फिजन से, द होल प्रोसेस इज़ वेरी सिमिलर। जैसे कि फ्रेगमेंटेशन में भी क्या, बाइनरी फिजन में भी एक सेल था और उसने खुद को डिवाइड किया और 2 सेल्स दे दिए, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, बाइनरी फिजन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, और फ्रेगमेंटेशन जो है स्टूडेंट्स ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो मान लो कि अगर आपको एग्जाम में फ्रेगमेंटेशन के बारे में लिखने को आ जाए तो व्हाट आर दी थिंग्स दैट यू हैव टू राइट डाउन स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये लिखना है, फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू मेंशन। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि इन फ्रेगमेंटेशन पेरेंट सेल्स after reaching a certain limit divides its body into many parts, and from each part a new spirogyra or a new daughter cell is obtained, and they further grow as a individual. This whole process take place under a favorable condition, that means plenty of food water supply की ज़रूरत है आपको। स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन जो है ये स्पाइरोगायरा जो है वो परफॉर्म करते हैं। समटाइम दे ओनली आस्क यू एन एग्जाम्पल, तो दैट टाइम यू शुड अंडरस्टैंड फ्रेगमेंटेशन जो है ये स्पाइरोगायरा के थ्रू जो है स्टूडेंट्स ऑब्टेन किया जाता है। दिस is what we have seen student in fragmentation. Now another type of a asexual reproduction that take place in a multicellular organism is known as a regeneration. Students, regeneration is a very special type of a reproduction. Here what does the word regeneration mean? Let us try to understand. Re means something that happens again and again, and generation means to grow. तो रीजनरेशन इज़ टू ग्रो अगेन। दोबारा से अगर कोई चीज़ ग्रो होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रीजनरेशन बोलते हैं। अब इसका अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें तो आपने लिजर्ड को देखा होगा। अगर किसी भी सर्टेन कंडीशन की वजह से लिजर्ड का जो टेल है वो कट जाए तो यू विल सी कि आफ्टर सम टाइम लिजर्ड जो है वो दोबारा से अपने टेल को ग्रो कर लेती है, उसका टेल दोबारा से आ जाता है। तो जो ये रीजनरेशन लिजर्ड परफॉर्म करता है इसे हम बोलते हैं लिमिटेड रीजनरेशन। वो पूरी तरह से नहीं रीजनरेट कर पाता, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो रीजनरेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं। लेट अस सी हाउ।
हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है विच वी कॉल इट एज अ प्लेनेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लेनेरिया की जो बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज़ अ प्लेनेरिया। द ऊपर का जो रीजन है इसे हम बोलते हैं हेड, फिर उसके बाद है हमारे पास मिडल पार्ट, और लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स जो है इट इज़ नोन एज अ टेल। ओके, तो हमने प्लेनेरिया की बॉडी के देखा लिजर्ड, हेड, मिडल पार्ट एंड टेल। अब अगर स्टूडेंट किसी भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर प्लेनेरिया की बॉडी कट जाए 3 पार्ट्स में, मतलब प्लेनेरिया की बॉडी को ब्रोक डाउन कर दिया जाए 3 पार्ट में, तो हमारे पास 3 पार्ट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। वी विल हैव हेड, जो प्लेनेरिया का एक सेक्शन था, दूसरा हमें मिल गया मिडल पार्ट, और तीसरा हमें मिल गया टेल। इस तरह से हमने प्लेनेरिया के बॉडी को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या किया है स्टूडेंट, डिवाइड कर दिया है। रीजनरेशन में होता क्या है स्टूडेंट, प्लेनेरिया अपने हेड से उसकी जो पूरी बॉडी है उसको दोबारा से प्रोड्यूस कर लेगा या उसको दोबारा से रीग्रो कर लेगा, और हेड के हेल्प से ही उसने मिडल पार्ट और टेल को क्या कर लिया स्टूडेंट, बना लिया, रीग्रो कर लिया, दोबारा से ग्रोथ कर ली। और अब उसका जो मिडल पार्ट था उस मिडल पार्ट ने हेड बना लिया और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स उसने टेल बना लिया, और इस तरह से हमें प्लेनेरिया मिल गया उसके मिडल पार्ट से। मिडल पार्ट ने हेड को रीग्रो कर लिया और टेल को भी रीग्रो कर लिया, और लास्ट में जो उसका टेल था उसने क्या किया, उसने हेड बना लिया और हेड के साथ साथ उसने स्टूडेंट्स अपना मिडल पार्ट बना लिया। इस तरह से प्लेनेरिया की बॉडी जब कट डाउन हुई 3 पार्ट्स में, 1, 2, 3 पार्ट्स में कट हुई, तो हमें एक ही प्लेनेरिया से 3 नए प्लेनेरिया मिल गए, और ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यू नीड टू मेंशन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ asexual reproduction take place in special organisms, or this type of a reproduction is a special type of a reproduction. Here when body of planaria is broken down into 3 parts, from each part न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू प्लेनेरिया ग्रोस, एंड दिस इज नोन एज अ रीजनरेशन। और स्टूडेंट हम इसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। हमारे पास प्लेनेरिया था, प्लेनेरिया की बॉडी जब 3 हिस्सों में कट डाउन हुई तो हर एक हिस्से से एक एक नया प्लेनेरिया आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक ही प्लेनेरिया से हमें क्या मिल गए, हमें 3 डिफरेंट प्लेनेरिया मिल गए, और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसे बोला जाता है रीजनरेशन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। वहीं पे रीजनरेशन लिजर्ड के भी केस में होता है, बट जो लिजर्ड के केस में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है दैट इज़ अ लिमिटेड रीजनरेशन। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि लिजर्ड के पास हेड और पूरी बॉडी है, सिर्फ उसका टेल जो है वो दोबारा से क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। लेकिन उस टेल से, जो कटे हुए लिजर्ड का टेल था, वहाँ से एक नया लिजर्ड ग्रो नहीं कर रहा। तो जो लिजर्ड का केस था स्टूडेंट, वहाँ पे तुमने लिमिटेड रीजनरेशन देखा है, बट प्लेनेरिया के केस में स्टूडेंट्स वी सी कि यहाँ पे रीजनरेशन पूरी तरह से होता है। हेड से एक नया प्लेनेरिया, मिडल पार्ट से एक नया प्लेनेरिया और टेल से भी एक नया प्लेनेरिया।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टाइप 2 था जहाँ पे हमने देखा है रीजनरेशन क्या होता है. आफ्टर रीजनरेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ asexual reproduction which take place in a multicellular organism and let us see वो क्या है. तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा स्टूडेंट्स, हमने फ्लो चार्ट में देख लिया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में ही कि 3 यहाँ पे जो तुम्हारा थर्ड टाइप होगा स्टूडेंट्स वो बर्डिंग होगा. अब बर्डिंग हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था जहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देखा गया था. अभी जो हम बर्डिंग देखने वाले हैं दैट बर्डिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Budding in a yeast is an example of a asexual reproduction in unicellular organism, whereas budding in hydra is an example of a asexual reproduction in multicellular organism. तो जब हम multicellular organism की बात कर रहे हैं at that time we are going to take an example of a hydra. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लेने वाले हैं. अब होता क्या है बर्डिंग में हम देखेंगे. ये सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रा को. तो हमारे पास ये रहा हाइड्रा. वी विल ड्रॉ हाइड्रा सच एज. अब हम बना देते हैं हाइड्रा के कुछ टेंटिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज a hydra which we have seen here. ये जो पार्ट है ये हो गया हाइड्रा के टेंटिकल्स. ओके, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रा की बॉडी है. अब बर्डिंग में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो पेरेंट हाइड्रा है मतलब ये हमारे पास जो हाइड्रा है इफ़ वी टेक इट एज अ पेरेंट हाइड्रा, इसके बॉडी पे एक छोटी सी आउटग्रोथ होने लगेगी. मतलब ये वाले रीजन में एक बॉडी से थोड़ा सा आउटग्रोथ होने लगेगा और वो आउटग्रोथ डेवलप होगा. इस तरह से वी कैन सी यहाँ पे हो रहा है आउटग्रोथ. वी कैन सी हियर आउटग्रोथ. ये हमने देख लिया हाइड्रा. अब हाइड्रा में जो ये आउटग्रोथ हो रहा है दिस आउटग्रोथ कैन बी नोन एज अ बर्ड. हम इस आउटग्रोथ को स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं, बर्ड्स बोल सकते हैं. अब ये बर्ड्स जो है ये बिल्कुल अपना जो पूरा न्यूट्रिशन है वो इस पेरेंट हाइड्रा से ऑब्टेन करेंगे. और जैसे जैसे स्टूडेंट्स वो अपना न्यूट्रिशन पेरेंट हाइड्रा से ऑब्टेन करेंगे वी विल सी हियर कि जो पेरेंट हाइड्रा है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो तुम्हारा बर्ड है धीरे धीरे क्योंकि इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर इस हाइड्रा की जो तुम्हारी आउटग्रोथ थी उसकी साइज़ जो है बच्चों वो बढ़ने लगेगी. साइज़ जो है ग्रो हो जाएगी और यहाँ पे इस हाइड्रा के पास भी क्या आ गए, टेंटिकल्स आ गए. अब ये हाइड्रा अब तक क्या कर रहा था स्टूडेंट, अपने पूरे न्यूट्रिशन पेरेंट हाइड्रा से ऑब्टेन कर रहा था. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक पहुंचने के बाद ये जो न्यू हाइड्रा है ये जो आउटग्रोथ है ये अपने आप को डिटैच कर लेगा. मतलब अपने आप को अलग कर लेगा किससे स्टूडेंट, पेरेंट बॉडी से. और इस तरह के कंडीशन को हम बर्डिंग बोलते हैं. अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद वी विल सी हमारा पेरेंट हाइड्रा जो है वो अभी भी एज इट इज़ है और पेरेंट हाइड्रा के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें एक न्यू हाइड्रा मिल गया है और वो हाइड्रा जो है वो डेवलप हुआ है बर्ड्स के फॉर्म में एंड दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ बर्डिंग. और ये हमें मिल गया पेरेंट हाइड्रा और ये हमारा हो गया डॉटर हाइड्रा. ये हमारा हो गया डॉटर हाइड्रा. इस तरह से वी कैन सी अ बर्डिंग विच इज़ अ प्रोसेस. अब अगर हमें बर्डिंग को लिखना हो तो व्हाट वी कैन सी हियर अ स्मॉल आउटग्रोथ. जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो अ स्मॉल आउटग्रोथ क्या हो रही है, डेवलप हो रही है ऑर्गेनिज्म के बीच में. अ स्मॉल आउटग्रोथ starts
to develop in parent cell and obtain all the required nutrient and then after reaching certain limit they detach themselves from parent cell and starts to grow independently, and this is known as a budding. एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप हुआ पेरेंट बॉडी के ऊपर, उस आउटग्रोथ ने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पेरेंट से ऑब्टेन किए, सारे न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में जो ये हाइड्रा है उसने अपनी साइज को ग्रो किया, एक सर्टेन लिमिट पे पहुंचने के बाद उसने अपने आप को पेरेंट सेल से क्या कर लिया, डिटैच कर लिया। अब डिटैच करके ये अब एक अलग से हाइड्रा ग्रो करने लगा है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ बर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर दिस बर्डिंग हमने सबसे पहले देखा है स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम ये देखते हैं कि स्पाइरोगायरा अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और फिर वो हर पार्ट से एक नया स्पाइरोगायरा डेवलप हो रहा है। फिर हमने देखा है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है और जिसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट्स के कटे हुए बॉडी पार्ट से पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो अराइज हो जाती है और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है। और अभी हमने देखा है स्टूडेंट्स बर्डिंग। बर्डिंग के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो फोर्थ टाइप का रिप्रोडक्शन है, द फोर्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी आर गोइंग टू सी इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसे हम बोलने वाले हैं वेजिटेटिव propagation. Up students, when we are talking about vegetative propagation, let us see what does vegetative propagation means. ये हमने 3 टाइप कर लिए, 1, 2, 3 and now we are going to discuss about our fourth type of reproduction and that is known as a vegetative propagation. और स्टूडेंट्स आप इसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देख सकते हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता क्या है, हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट की जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स उसको उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज गिवन इन वेजिटेटिव पार्ट? प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, फ्रूट्स और फ्लावर को अगर छोड़ दे, फ्रूट्स और फ्लावर दे आर रिप्रोडक्टिव पार्ट, और अगर हम फ्रूट और फ्लावर्स को छोड़ दे तो हमारे पास जो भी है स्टेम, लीव्स, रूट्स एक्सेट्रा, दिस ऑल आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट वेजिटेटिव पार्ट के हेल्प से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को स्टूडेंट्स हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। इफ plant perform reproduction with its vegetative parts such as stem, leaves and root, this type of a reproduction is known as a vegetative reproduction. If reproduction in plants take place
If reproduction in plant take place with the help of a vegetative part such as roots, stem, leaves, this type of reproduction is known as a vegetative reproduction. और इस तरह के reproduction को students हम vegetative reproduction बोलते हैं. अब vegetative reproduction में we will take an example कि कहाँ पे vegetative reproduction होता है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम लीव्स के केस से बात कर लें तो तुमने एक प्लांट देखा होगा अपने स्कूल्स में या फिर आपको दिखाया जाता है यूजुअली इस लीव्स के बारे में. ये जो लीव्स है इसका नाम है ब्रायोफाइलम. स्टूडेंट अब इस लीफ की स्पेशलिटी क्या होती है? इस लीफ में ये पूरा लीफ है तुम्हारा विच इज़ नोन एज अ ब्रायोफाइलम. ओके स्टूडेंट्स, अब इस लीफ के साइड से एक नया लीफ अराइज होने लगता है. थोड़े टाइम तक ये ग्रो करेगा जैसे बर्डिंग में होता है और साइज़ बड़ी होने के बाद ये खुद को क्या कर लेगा, उस लीफ से अलग कर लेगा स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इन ब्रायोफाइलम में क्या हो रहा है बच्चों, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दैट्स वाई ब्रायोफाइलम जो है ये इस एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है. वी विल राइट डाउन इन दिस reproduction take place with the help of leaves, and leaves is a vegetative part, VP is a vegetative part, and that's why it comes under the category of a vegetative reproduction. अब इसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम बात करें रूट्स के थ्रू, लेट अस टॉक अबाउट रूट्स. तो रूट्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन के पहले हमने लीव्स का देख लिया, लीव्स का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. रूट्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें तुम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हो स्वीट पोटैटोज़ का. यू विल सी कि स्वीट पोटैटोज़ जो है वो रूट्स के हेल्प से ग्रो करते हैं. दैट मीन्स हमारे पास ऊपर एक सेक्शन है, यहाँ पे लीव्स है, हमें लीव्स है, लेकिन लीव्स के नीचे जो रूट्स होते हैं उन रूट्स में एक बल्जी सी बॉडी होती है जो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है, और यही हमारे स्वीट पोटैटोज़ जो हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ रूट. ये जो है एग्जाम्पल है ये रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है. और लास्ट में स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देख ले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेम. स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो स्टेम के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. हम सब ने मनी प्लांट देखा होगा. वी सी कि मनी प्लांट में सिर्फ स्टेम को ला के रख दिया जाए तो वहाँ से फिर दोबारा से लीव्स क्या होने लगते हैं, अराइज करने लगते हैं. तो वो एक एग्जाम्पल है आपका अंडर स्टेम. और इसके अलावा आपने देखा होगा कि रोज़ में भी अगर आप सिर्फ रोज़ को कट करके रख देते हो इन अ सॉइल और उसको बराबर न्यूट्रिएंट एंड फूड सप्लाई देते हो तो वहाँ से फिर आपको प्लांट जो है वो राइज होने लगेगा. तो जब भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन के बारे में बात होती है स्टूडेंट्स तो व्हाट वी राइट डाउन, प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से मतलब रूट, स्टीम और लीव्स के थ्रू होता है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. इफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ रूट, स्टीम एंड लीव्स which are vegetative part of a plant then they are known as a vegetative reproduction. फिर उसे स्टूडेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है. दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन सो फार. हमने फ्रेगमेंटेशन देख लिया, हमने रीजनरेशन देख लिया, वी हैव सीन व्हाट इज़ बर्डिंग. बर्डिंग के बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लिया. नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टाइप ऑफ reproduction in multicellular organism and that is known as a spore formation. So we are going to discuss last type which is
स्पोर फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, हमने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज नोन एज अ स्पोर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, स्पोर फॉर्मेशन होते हुए आप सबने देखा होगा, अगर एक पीस ऑफ अ ब्रेड 2-3 दिन के लिए मॉइस्ट प्लेस पे बाहर कहीं पड़ा हो जहाँ पे ह्यूमिड हेयर हो, तो यू विल सी कि उस ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन सा डेवलप होने लगता है। दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ अ स्पोर फॉर्मेशन। वो फंजाई के थ्रू डेवलप होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, अब हम स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले वी विल सी व्हाट हैपन, या कहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो राइजोपस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड स्पोर फॉर्मेशन। ये हमारे पास, हम लोग सबसे पहले राइजोइड्स और राइजोपस को ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपके प्लांट पे वो ग्रीन सा डेवलप होता है, दिस इज़ नथिंग। जो आपके ब्रेड पे डेवलप होता है, दिस इज़ नथिंग बट दिस अ स्पोर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्पोर्स जो होते हैं, इनके अंदर ये हमारे पास आ गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो रीजन होता है आपका, दिस पार्ट ऑफ द रीजन, दे आर नोन एज अ हाइफे। इसे हम हाइफे बोलते हैं। और ये जो आपको राउंड सा बल्जी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज अ स्पोरेंजियम। दिस इज नोन एज अ स्टूडेंट स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर बाकी ये तुम्हारे पास जो रीजन है, इसे बोला जाता है स्टेम। इसके अंदर मॉइस्ट कंडीशन में ढेर सारे स्पोर्स डेवलप होने लगते हैं अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब आफ्टर डेवलपिंग अप टू अ सर्टेन लिमिट ये आउटबर्स्ट हो जाते हैं, मतलब ये फट जाते हैं। और फटने की वजह से सारे स्पोर्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। और इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है, इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स के आउटब्रस्ट होने पे और स्पोरेंजियम के आउटब्रस्ट होने पे बहुत सारे स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि स्पोर फॉर्मेशन जो है ये मॉइस्ट प्लेस में होता है, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर में, ताकि फंगस जो है वो यूजुअली आसानी से डेवलप हो सके। तो स्टूडेंट, आज हमने ये देखा है कि किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमने फ्रेगमेंटेशन देखा। फ्रेगमेंटेशन में तुम्हारा एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा कि आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लिमिट अपने बॉडी को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फिर हर पार्ट से न्यू स्पाइरोगायरा डेवलप हो रहा है एंड दिस इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमने रीजनरेशन देखा। रीजनरेशन में वी हैव सीन कि प्लानेरिया की बॉडी अगर ब्रेक डाउन हो जाती है 2-3 हिस्सों में, तो हर एक पार्ट से एक न्यू बॉडी डेवलप होने लगती है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन। लेटर ऑन स्टूडेंट वी हैव सीन व्हाट इज बर्डिंग। बर्डिंग वो भी हमने हाइड्रा में देखा है। बर्डिंग इन अ ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हमने देखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन रूट, स्टीम या लीव्स के थ्रू हो रहा है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने देखा है स्पोर फॉर्मेशन which is specially taking place in a moist condition. Okay students, that's all for today. अब हमने आज के लेक्चर में अब तक का जितना भी असेक्सुअल पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो आगे के लेक्चर्स होंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। This is what we are going to see ahead. Sexual reproduction in plants, sexual reproduction के लिए male reproductive part and female reproductive part. Student, आपका asexual का part आज यहाँ पे complete हो जाता है। तो asexual के part में आपके लिए क्या important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद स्टूडेंट यू हैव टू नोट डाउन कि किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग परफॉर्म करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अलग परफॉर्म करते हैं। तो आप इन शॉर्ट सब याद रखो, बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, बर्डिंग इन ईस्ट कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, and last was spore formation. Now students, in our next lecture we are going to discuss about sexual reproduction. That's all for today students. Thank you so much and keep watching.